internal financial control as per regulatory requirements. The term internal financial control basically refers to the policies and procedure put in place by companies for ensuring reliability, effectiveness, compliance with applicable laws, safeguarding of asset and prevention and detection of fraud. अब जो ये इंटरनल फाइनेंशियल कंट्रोल है, कुछ रेगुलेटरी रिक्वायरमेंट्स भी होती है, मतलब कोई एक्ट भी बोलते हैं कि हमें इस तरीके से वर्क करना चाहिए, तो हमें उसको भी फुलफिल करना पड़ेगा. The Companies Act 2013 has placed greater emphasis on effective implementation and reporting of internal control for the company. The term internal financial control is used at some places in Companies Act casting responsibilities as under. तो क्या हमारे रेगुलेटरी फ्रेमवर्क क्या होता है, जो जैसे कि कोई एक्ट हमें कुछ करने को बोले, ठीक है, तो यहाँ पर कंपनीज एक्ट ने हमें एज पर सेक्शन 134 सबसेक्शन 5 in case of listed companies the director responsibility statement shall state that directors had laid down internal financial control to be followed by the company and such internal financial control are adequate and were operating effectively. तो हमें इस बात को डिस्क्लोज करना पड़ेगा और इस बात को फॉलो करना पड़ेगा, क्योंकि हमें सेक्शन 134 क्या बोलता है कि डायरेक्टर रिस्पॉन्सिबिलिटी स्टेटमेंट में हमें ये बताना है कि डायरेक्टर्स ने इंटरनल फाइनेंशियल कंट्रोल को फॉलो किया है और वो एडिक्वेट भी था और ऑपरेट भी कर रहा था इफेक्टिवली, ठीक है ना, क्योंकि सिर्फ इंटरनल कंट्रोल लगाना इंपॉर्टेंट नहीं है, वो ऑपरेट भी करना चाहिए सही से. सेक्शन 143 सबसेक्शन 3 ऑफ द एक्ट, the auditor report shall state whether the company has adequate internal financial control system in place and also on the operating effectiveness of such control. This requirement shall not apply to the company which is 1% company or small company or has turnover less than 50 crore as per latest audited financial statement and which has aggregate borrowings from bank or financial institution or body corporate at any point of time during financial year for less than रुपीज़ 25 करोड़. तो सेक्शन 143 क्या बोलता है कि हमें ऑडिटर रिपोर्ट में भी ये मेंशन करना है कि हमने ऑडिटर ने इंटरनल फाइनेंशियल कंट्रोल सिस्टम को चेक किया और अच्छे से वो ऑपरेट हो रहा है इफेक्टिवली कि नहीं हो रहा. तो सेम है, बस यहाँ पर क्या था, डायरेक्टर रिस्पॉन्सिबिलिटी स्टेटमेंट में हमें वो बात डिस्क्लोज करनी थी और यहाँ पर ऑडिटर रिपोर्ट में. लेकिन ये रिक्वायरमेंट प्राइवेट कंपनी पर अप्लाई नहीं होती. जैसे कौन कौन सी कंपनी, 1% कंपनी, स्मॉल कंपनी और ऐसी कंपनी जिनका टर्नओवर 50 करोड़ से कम है और जिनके लास्ट ईयर में एग्रीगेट बोरोइंग एट एनी पॉइंट ऑफ टाइम 25 करोड़ से कम है. सेक्शन 177, एवरी ऑडिट कमिटी शैल एक्ट इन अकॉर्डेंस विद द टर्म्स ऑफ रेफरेंस specified in writing by the board which shall inter alia include evaluation of internal financial control and risk management system. तो सेक्शन 177 भी ये बोलता है कि हर ऑडिट कमिटी को कैसे वर्क करना है विद इंटरनल कंट्रोल और विद रिस्क असेसमेंट सिस्टम. एज पर सेक्शन 149 द कंपनी एंड independent director shall abide by the provision of section 4 which lays down the code of independent director. As per the code, the role and function of independent director include that they shall satisfy themselves on the integrity of financial information and that financial control and system of risk management are robust and defensible. तो हमने इतने अच्छे तरीके से हमने रिस्क मैनेजमेंट सिस्टम को बना करके रखा है कि वो ख़राब नहीं हो सकते और वो अच्छे से वर्क कर रहे हैं. मतलब सिंपल क्या है इस पूरे टॉपिक में कि हमें कंपनीज एक्ट ने ये बोला है कि कंपनी में इंटरनल कंट्रोल अच्छे से वर्क करना चाहिए, ऑपरेट करना चाहिए इफेक्टिवली और एडिक्वेटली होना भी चाहिए. तो ये सारी चीज़ें हमारे कंपनीज एक्ट में लिखी थी. फिर आगे डॉक्यूमेंटिंग द रिस्क. द ऑडिटर शैल डॉक्यूमेंट द डिस्कशन अमंग द एंगेजमेंट टीम एंड सिग्निफिकेंट डिसीजंस रीच्ड, की एलिमेंट of understanding obtained regarding each of the aspect of the entity and its environment and of each of the internal control components, the sources of information from which understanding was obtained, the risk assessment procedure performed. तो ये सारे पॉइंट्स हैं जिनको हमें डॉक्यूमेंट करके रखना है, ठीक है, संभाल के रखना है सारे पेजेस को. फिर कौन कौन सी बातें, जो भी एंगेजमेंट टीम के साथ हमने डिस्कशन किया है और जो भी सिग्निफिकेंट इम्पॉर्टेंट डिसीजंस पे हम पहुँचे थे तो वो उसको डॉक्यूमेंट करना है. जो भी की एलिमेंट्स थे फॉर अंडरस्टैंडिंग द बिजनेस एनवायरनमेंट ऑफ द एंटिटी, हमने डिटेल में पढ़ा था ये वाला टॉपिक, एंड इट्स एनवायरनमेंट
ऑफ ईच ऑफ द इंटरनल कंट्रोल कॉम्पोनेंट्स, इंटरनल कंट्रोल कॉम्पोनेंट्स भी हमने पढ़े थे, सोर्सेज ऑफ इंफॉर्मेशन फ्रॉम विच द अंडरस्टैंडिंग ऑब्टेन एंड द रिस्क असेसमेंट प्रोसीजर परफॉर्म। तो इनको भी डॉक्यूमेंट हमने करके रखना है। फर्स्ट पॉइंट क्या था, जो भी हमने डिस्कशन करा और जो भी हम डिसीजन पे पहुंचे थे। सेकंड पॉइंट क्या है, जो भी की एलिमेंट हमने यूज़ करा है फॉर अंडरस्टैंडिंग द एनवायरनमेंट ऑफ द एंटिटी, इंटरनल कंट्रोल कॉम्पोनेंट्स और रिस्क असेसमेंट प्रोसीजर। फिर थर्ड है आइडेंटिफाइड एंड असेस्ड रिस्क ऑफ मटेरियल मिसस्टेटमेंट एंड फाइनेंशियल स्टेटमेंट लेवल एंड एट असर्शन लेवल, ठीक है, इसको भी डॉक्यूमेंट करना है। फिर रिस्क आइडेंटिफाइड एंड रिलेटेड कंट्रोल अबाउट द ऑडिटर हैज़ ऑब्टेन द अंडरस्टैंडिंग, ये चारों बातें हमें क्या करके रखनी है, डॉक्यूमेंट करके रखनी है। Assess and report audit findings. At the conclusion of each audit, it is possible that there will be certain findings or exceptions in IT environment and IT control of the company that need to be assessed and reported to relevant stakeholder, including management and those charged with governance, board of director, those charged with governance कौन, board of directors, audit committee। तो जब हम ऑडिट को कंक्लूड करेंगे, जो भी हमारी फाइंडिंग्स होंगी उसको हमें रिपोर्ट करना होगा, किसको, रेलेवेंट स्टेक होल्डर्स को और दो चार्ज विद गवर्नेंस को। स्टेक होल्डर्स में तो सब लोग ही आ जाएंगे, कंपनी के अंदर के, कंपनी के बाहर के लोग, और दो चार्ज विद गवर्नेंस जो हमारे टॉप लेवल वाले लोग हैं, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स और ऑडिट कमेटी, इन सबको हमें रिपोर्ट करना होगा। सम पॉइंट्स टू कंसिडर आर एज फॉलोज। Are there any weakness in IT control? What is the impact of these weaknesses on overall audit? Report deficiencies to management internal control memo or management letter. Communicate in writing any significant deficiencies to those charged with governance. तो ये 4 पॉइंट हमें कंसिडर करने पड़ेंगे, इनके आंसर देने पड़ेंगे। जैसे कि हमने चेकलिस्ट में करा था ना कि कुछ क्वेश्चन जो ऑडिटर खुद से ही पूछते हैं और खुद ही आंसर करते हैं, ताकि वो ये पता लगा पाए कि इंटरनल कंट्रोल ठीक से वर्क कर रहा है कि नहीं कर रहा। द ऑडिटर क्या, दोज चार्ज विद गवर्नेंस, मतलब वो, अरे मतलब ये, मतलब कि ये लोग हैं, जैसे एग्जाम्पल होता है ना, अरे लिखने का तरीका है बस, मतलब कि इंग्लिश में लिखते हैं ना कि ये, हाँ इसका फुल फॉर्म होगा कुछ, बस ये है कि दोज चार्ज विद गवर्नेंस ये है, जैसे हम एक्सेट्रा लिख देते हैं ETC, वैसे ही है ये। मतलब वही है, वो उसका मतलब कि वो लोग हैं। द ऑडिटर नीड टू असेस, ऑडिट पढ़ने पे ध्यान मत दो, इंग्लिश में ध्यान दो कि इसका मतलब क्या है, ऑडिट पढ़ लो। प्रेजेंटेशन में तुम VIZ नहीं लिखोगे तो भी चल जाएगा। द ऑडिटर नीड्स टू असेस, वहाँ पे एग्जामिनर नहीं बोलेगा अरे वाह इसने ये वर्ड का यूज़ करा है, इसको तो मैं एक एक्स्ट्रा मार्क्स दूंगा। The auditor need to assess each finding or exception to determine the impact of audit and evaluate if the exception result in deficiency in internal control। तो ऑडिटर को क्या करना है, एसेस करनी है उसकी फाइंडिंग, और अगर कोई डेफिशिएंसी है इंटरनल कंट्रोल में तो उसको भी रिपोर्ट करेगा वो मैनेजमेंट को। अ डेफिशिएंसी इन इंटरनल कंट्रोल एग्जिस्ट इफ द कंट्रोल इज डिजाइन, इम्प्लीमेंटेड, ऑपरेटेड, वही डेफिनेशन लिखी है जो इंटरनल कंट्रोल की डेफिनेशन हमने पढ़ी थी। Internal control exists if control is designed, implemented, operated in such a way that is unable to prevent, detect or correct misstatement in financial statement on timely basis, or the control is missing. Evaluation and assessment of audit findings and control deficiencies involve applying professional judgment and include consideration for quantitative and qualitative measure. Each finding should be looked at individual and in aggregate by combining with other findings and deficiencies. तो अब हमें क्या करना है, सब कुछ हमने कर लिया इंटरनल कंट्रोल में, उसके बाद हम क्या कर रहे हैं, उसको असेस कर रहे हैं, हमारी फाइंडिंग्स को असेस कर रहे हैं और फिर उसको इवैल्यूएट कर रहे हैं, उसको रिपोर्ट कर रहे हैं,
और अगर कोई डेफिशिएंसी रह जा रही है, मतलब कि अगर हम कुछ चीज़ पता नहीं कर पा रहे, पीडीसी अनेबल टू पीडीसी प्रिवेंट डिटेक्ट और करेक्ट मिस स्टेटमेंट, तो उसको हम क्या, मतलब कि इससे हमारा कंफ्यूजन क्या निकलेगा कि कंट्रोल इज मिसिंग। अगर हम ऐसा नहीं कर पा रहे तो कंट्रोल इज मिसिंग, इंटरनल कंट्रोल ठीक से वर्क नहीं कर रहा है। The auditor's responses to assessed risk, ऐसे 330 पढ़ लो, ये खत्म हो जाएगा थोड़ी देर में चैप्टर। ऐसे 330 द ऑडिटर रिस्पॉन्सेज टू असेस रिस्क डील्स विद द ऑडिटर रिस्पॉन्सिबिलिटी। ये बस ये ध्यान से रखना है, जितने भी जहाँ पर भी ऐसे को कोट करके लिखे हुए है ना लाइन, ये आपको पता होना चाहिए और याद होना चाहिए एग्जाम में, क्योंकि ये पूछ सकते हैं एमसीक्यू में कि ये वाला ऐसे किसके ऊपर, ये वाला ऐसे किसके ऊपर, और इसको भूल भी सकते हो, तो इसलिए बोला मैंने कि इसको ध्यान से रखना याद करके। ऐसे 330 द ऑडिटर रिस्पॉन्सेज। तुम्हारी तबीयत खराब हो रही है? हाँ, आज ऑडिट का ये चैप्टर 3 चैप्टर कंप्लीट करना है, और उसके बाद फिर हम AS 22 AS 24 और फॉरेन एक्सचेंज का एक क्वेश्चन, ये पूरा काम 1.5 आवर में हो जाएगा, ठीक है। 1.1 नहीं 1.30, 1.5 आवर। फिर उसके बाद आपका अमेलगमेशन रह जाएगा, और क्या रह जाएगा? अच्छा, मैंने गलती से 24 बोल दिया, हमें रेवेन्यू रिकॉग्निशन करना है, हमें टैक्स वाला करना है एक आज एएस, और रेवेन्यू रिकॉग्निशन करना है, ये दोनों छोटे हैं। एएस रेवेन्यू रिकॉग्निशन हमने कहाँ किया? कंस्ट्रक्शन कॉन्ट्रैक्ट किया था, नहीं याद नहीं। रेवेन्यू रिकॉग्निशन करना है, और AS 22 टैक्स वाला जो है वो करना है। AS 24 तो डिसकंटिन्यूइंग ऑपरेशन पर है, वो अभी नहीं, वो नेक्स्ट क्लास में करेंगे। हाँ वही है डिसकंटिन्यूइंग ऑपरेशन, वो वाला बचा है, और AS 14 बचा है अमेलगमेशन। हाँ, तो एक दिन में वो कंप्लीट हो जाएगा 24, और अमेलगमेशन 4-5 क्लासेस जो भी लगेंगे वो। हाँ, अमेलगमेशन ना अच्छे से कर लेना अमेलगमेशन, क्योंकि अमेलगमेशन बचे ही कितने हैं। अमेलगमेशन और कंसोलिडेशन में से कोई नहीं, अमेलगमेशन और कंसोलिडेशन में कोई एक क्वेश्चन तो आते ही आता है एग्जाम में। हाँ, ये AS ही तो है, कंसोलिडेशन भी AS है और अमेलगमेशन भी AS है। कंसोलिडेशन मॉड्यूल 2 में है, मॉड्यूल 3 में नहीं है। 3 में भी है चैप्टर, मैं बोल रही हूँ कंसोलिडेशन मॉड्यूल 2 में है, मॉड्यूल 3 में नहीं है, मॉड्यूल 2 में है। हाँ हाँ, ऑडिट कंप्लीट कर ले जल्दी से। द ऑडिटर्स रिस्पॉन्सेज टू असेस रिस्क डील्स विद द ऑडिटर रिस्पॉन्सिबिलिटी टू डिजाइन एंड इम्प्लीमेंट रिस्पॉन्सेज to the risk of material misstatement and identified and assessed by auditor in accordance with SA 315, identifying and assessing the risk of misstatement through understanding the entity of environment in financial statement audit। तो थोड़ी देर ध्यान से देख लो, SA 330 क्या बोलता है? द ऑडिटर रिस्पॉन्सेज टू असेस रिस्क, ऑडिटर का क्या रिस्पॉन्स रहेगा जो भी उसने रिस्क के बारे में असेसमेंट किया है, ठीक है। हम क्या कर रहे होते हैं, क्योंकि रिस्क असेसमेंट प्रोसीजर कर रहा होता है ऑडिटर, तो उसके ऊपर ऑडिटर का क्या रिस्पॉन्स है वो SA 330 बोलता है, और वो इन अकॉर्डेंस विद SA 315 वर्क करता है। SA 315 में वो क्या कर रहा होता है? आइडेंटिफाई एंड असेस द रिस्क ऑफ मटीरियल मिसस्टेटमेंट थ्रू अंडरस्टैंडिंग द एंटिटी एंड इट्स एनवायरमेंट। The objective of auditor is to obtain
सफिशिएंट एप्रोप्रिएट ऑडिट एविडेंस, मैंने आपको बोला था पहले कि ये वर्ड, ये बहुत, जहाँ पर भी आप ऑडिट एविडेंस लिखोगे वहाँ पे लिख लेना सफिशिएंट एप्रोप्रिएट ऑडिट एविडेंस अबाउट द एसेस रिस्क ऑफ मटेरियल मिसस्टेटमेंट थ्रू डिजाइनिंग एंड इम्प्लीमेंटेड एप्रोप्रिएट रिस्पॉन्सेज टू दोज रिस्क। ऐसे 330 क्या स्टेट करता है? द ऑडिटर शैल डिजाइन एंड इम्प्लीमेंट ओवरऑल रिस्पॉन्सेज टू एड्रेस द असेस्ड रिस्क। हमने अभी देखा था ना, ऐसे 330 क्या है? ऑडिटर का रिस्पॉन्स टू असेस्ड रिस्क। तो वही लिखा है यहाँ पर भी कि ऑडिटर शैल डिजाइन एंड इम्प्लीमेंट ओवरऑल रिस्पॉन्सेज टू एड्रेस द असेस्ड रिस्क। द ऑडिटर शैल डिजाइन एंड परफॉर्म फर्दर ऑडिट प्रोसीजर whose NTE are based on and are responsive to the assessed risk of material misstatement at assertion level। तो यहाँ पर हम क्या एड्रेस कर रहे हैं? देखो, सबसे पहले आपको ये बताया गया कि ऐसे 330 किसके बारे में? ऑडिटर रिस्पॉन्सेज टू असेस्ड रिस्क। अब हमने पहले भी देखा था कि हमारे लेवल कैसे होते हैं, 2 लेवल होते हैं, एक ओवरऑल लेवल होता है और एक असर्शन इंडिविजुअल लेवल होता है। तो हम सेम चीज़, हम रिस्क को असेस करेंगे एट फाइनेंशियल स्टेटमेंट लेवल और सेकेंड पॉइंट में हम रिस्क को असेस करेंगे एट असर्शन लेवल। याद हो गया? ऐसे 330 क्या बोलता है? ऑडिटर रिस्पॉन्सेज टू असेस रिस्क। फर्स्ट पॉइंट इज व्हाट? एट फाइनेंशियल स्टेटमेंट लेवल और सेकेंड पॉइंट है एट असर्शन लेवल। In designing the further audit procedure to perform, the auditor shall consider the reason of assessment given to the risk of material misstatement at assertion level for each class of transaction, account balance and disclosure including। तो हम assessment जब करेंगे at assertion level, तो हम assertion level में क्या देखते हैं? हर एक class of transaction, मतलब हर एक P&L का आइटम, हर एक बैलेंस शीट का आइटम और हर एक डिस्क्लोजर का पॉइंट, इंक्लूडिंग कितने चांसेस हैं मटेरियल मिसस्टेटमेंट होने के, उसी के अकॉर्डिंग तो हम रिस्क को असेसमेंट करेंगे। कितने चांसेस, लाइकलीहुड ऑफ मटेरियल मिसस्टेटमेंट एंड वेदर द रिस्क असेसमेंट takes into account the relevant control, thereby requiring auditor to obtain audit evidence to determine whether the control are operating effectively and obtain more persuasive audit evidence the higher the auditor's assessment of risk। तो इन डिज़ाइनिंग फर्दर ऑडिट प्रोसीजर, ऑडिटर क्या क्या पॉइंट्स को कंसिडर करेगा एट असर्शन लेवल कि लाइकलीहुड क्या है ऑफ मटेरियल मिसस्टेटमेंट और कितने अच्छे से उनका कंट्रोल इफेक्टिवली वर्क कर रहा है, और वो ये ऑब्टेन करेगा कि ऑडिट एविडेंस, मतलब उसके ग्रेटर लेवल पे ऑडिट एविडेंस हर जगह प्रेजेंट होने चाहिए। द हायर द ऑडिटर असेसमेंट ऑफ रिस्क, और जितना वो ये ज़्यादा, मतलब कि जितना वो ऑडिट एविडेंस लेगा, जितने जगह से वो ऑडिट एविडेंस लेगा, उतने अच्छे से वो क्या कर पाएगा? ऑडिटर असेसमेंट कर पाएगा रिस्क का। द ऑडिटर शैल डिजाइन एंड परफॉर्म टेस्ट ऑफ कंट्रोल टू ऑब्टेन सफिशिएंट एप्रोप्रिएट ऑडिट एविडेंस एज टू द ऑपरेटिंग इफेक्टिवनेस ऑफ रेलेवेंट कंट्रोल व्हेन the auditor assessment of risk of material misstatement at assertion level includes an expectation that control are operating effectively, or substantive procedure alone cannot provide sufficient appropriate audit evidence at assertion level। यहाँ पर अब यहाँ पर क्या लिखा है कि ऑडिटर ये असेसमेंट करेगा कि असर्शन लेवल पे हमारा इंटरनल कंट्रोल इफेक्टिवली वर्क कर रहा है, और सिर्फ सब्सटेंसिव प्रोसीजर सफिशिएंट नहीं है, हमें असर्शन लेवल पे सफिशिएंट एप्रोप्रिएट ऑडिट एविडेंस नहीं निकले, हमें और भी प्रोसीजर्स करने पड़ते हैं। हमें फैप फर्दर ऑडिट प्रोसीजर, हमें रिस्क असेसमेंट प्रोसीजर और भी प्रोसीजर्स करने पड़ते हैं। In designing and performing test of control, the auditor shall obtain more persuasive audit evidence the more reliance the auditor places on effectiveness of control। इसको ऐसे याद कर लो कि जितना ज़्यादा ऑडिट एविडेंस उतनी ज़्यादा इफेक्टिवनेस, ठीक है। द हायर द लेवल ऑफ एश्योरेंस में सॉर्ट अबाउट द ऑपरेटिंग इफेक्टिवनेस ऑफ कंट्रोल व्हेन द अप्रोच अडॉप्टेड कंसिस्ट primarily of test of control in particular where it is not possible or practicable to obtain sufficient audit evidence from substantive procedure। Nature and extent of test of control। In designing and performing test of control, the auditor shall perform other audit procedure in combination with inquiry, क्योंकि inquiry कैन नॉट बी डन अलोन, उसके साथ हमें कुछ ना कुछ और प्रोसीजर को करना पड़ता है। सो
क्या परफॉर्म करेगा, कोई और ऑडिट प्रोसीजर। कोई और ऑडिट प्रोसीजर क्या हो सकता है वो, फॉर एग्जाम्पल क्या हो सकता है बताओ। ऑडिट प्रोसीजर हमने 7 ऑडिट प्रोसीजर लिखे थे कॉपी में, क्या क्या थे वो, इंस्पेक्शन हो सकता है, ऑब्जर्वेशन हो सकता है, एनालिसिस वाला पॉइंट वो हो सकता है, री परफॉर्मेंस हो सकता है, री कैलकुलेशन हो सकता है, ये सब इन कॉम्बिनेशन विद इंक्वायरी टू ऑब्टेन ऑडिट एविडेंस अबाउट द ऑपरेटिंग इफेक्टिवनेस ऑफ कंट्रोल इंक्लूडिंग हाउ control were applied at relevant times during the period under audit, the consistency in which they have applied and by whom and by what means they were applied। तो हम टेस्ट कैसे करेंगे कंट्रोल को, हम इंक्वायरी के साथ कोई दूसरे ऑडिट प्रोसीजर्स परफॉर्म करेंगे, इंक्लूडिंग कंट्रोल को कितनी बार अप्लाई किया गया ड्यूरिंग अ पीरियड ऑफ ऑडिट, कितनी कंसिस्टेंसी के साथ हमने काम किया है, और बाय होम एंड बाय व्हाट मीन्स दे वर अप्लाइड। तो इन सब पॉइंट से हम ये बता पाएंगे कि हमारा कंट्रोल कितने अच्छे से वर्क कर रहा है, हम उसको टेस्ट कर पाएंगे। डिटरमाइन वेदर द कंट्रोल टू बी टेस्टेड डिपेंड अपॉन अदर कंट्रोल्स एंड इफ सो वेदर इट इज नेसेसरी टू ऑब्टेन ऑडिट एविडेंस सपोर्टिंग द इफेक्टिव ऑपरेशन ऑफ दोज इनडायरेक्ट कंट्रोल। तो अगर किसी का कंट्रोल किसी और पे डिपेंड करता है, इनडायरेक्ट कंट्रोल है, तो उसको भी हमें क्या करना पड़ेगा, टेस्ट करना पड़ेगा। इंक्वायरी अलोन एक लाइन ना बहुत बार लिखी हुई है ऑडिट के अंदर, तो आप जब इसको खुद से एक बार रीड करोगे ना तो मार्क करते रह चले जाना कि आपको कितना कितना पढ़ना है, ठीक है। इंक्वायरी अलोन इज नॉट सफिशिएंट टू टेस्ट द ऑपरेटिंग इफेक्टिवनेस ऑफ कंट्रोल, अकॉर्डिंगली अदर ऑडिट प्रोसीजर आर परफॉर्म्ड इन कॉम्बिनेशन विद इंक्वायरी। In this regard, inquiry combined with inspection or re-performance may provide more assurance than inquiry and observation। अब हमें क्या बताया गया कि वैसे तो इंक्वायरी को हम अकेला यूज़ नहीं कर सकते, लेकिन अगर इंक्वायरी को इंस्पेक्शन के साथ या री परफॉर्मेंस के साथ हम कंबाइन करें ना, तो हमारे लिए वो ज़्यादा एश्योरेंस लेकर के आती है। लेकिन अगर इंक्वायरी को ऑब्जर्वेशन के साथ हम कंबाइन करते हैं तो वो हमारे लिए कम यूजफुल होती है। द नेचर ऑफ अ पर्टिकुलर कंट्रोल इन्फ्लुएंसेस द टाइप ऑफ प्रोसीजर रिक्वायर्ड फॉर ऑडिट एविडेंस अबाउट वेदर द कंट्रोल ऑपरेटिंग इफेक्टिवली। हमें किस चीज़ में काम कर रहा है, हमें उस पर डिपेंड करता है कि हम कौन सा प्रोसीजर चूज़ कर रहे हैं। फॉर एग्जाम्पल, इफ ऑपरेटिंग इफेक्टिवनेस इज एविडेंस बाय डॉक्यूमेंटेशन, द ऑडिटर में डिसाइड टू इंस्पेक्ट इट टू ऑब्टेन द ऑडिट एविडेंस अबाउट ऑपरेटिंग इफेक्टिवनेस। When more persuasive audit evidence is needed regarding the effectiveness, it would be appropriate to increase the extent of testing of control. Matters the auditor may consider in determining the extent of test of control including the following: the frequency. What are the matter auditor may consider while determining the extent of test of control? कि what is the frequency of performance of control by the entity, length of time during the audit period, expected rate of deviation। हमने कंट्रोल तो लगा, मतलब कि जो हमने सोचा और जो हमने किया उसमें कितना डिफरेंस था, expected rate of deviation, relevance and reliability of audit evidence, the extent to which audit evidence is obtained from test of other control related to assertion, timing of test of control। The auditor shall test control for a particular time or throughout the period। या तो हम एक पर्टिकुलर टाइम चूज़ कर सकते हैं, या फिर हम पूरे ड्यूरिंग फुल ऑडिट हम उसे यूज़ कर सकते हैं। फॉर द ऑडिटर इंटेंड टू रिलाई दोज कंट्रोल इन ऑर्डर टू प्रोवाइड एन अप्रोप्रिएट बेसिस फॉर ऑडिटर इंटेंडेड रिलायंस। Audit evidence pertaining only to a point of time may be sufficient for auditor's purpose. For example, testing control over entities' physical inventory counting at a period end. On the other hand, auditor intends to rely over a period. Tests are capable of providing audit evidence that are operated effectively at relevant times during that period appropriate। अब टाइमिंग क्या है टेस्ट ऑफ कंट्रोल की? दो टाइमिंग हो सकती है, या तो एक पर्टिकुलर टाइम हो सकता है या फिर थ्रू आउट द ऑडिट हो सकता है। पर्टिकुलर टाइम में जैसे कि हमें अगर इन्वेंट्री काउंटिंग करनी है तो वो एक पर्टिकुलर टाइम पे होगी। जैसे हमने ईयर एंड पे गए, हमने इन्वेंट्री काउंट करी, वो एक पर्टिकुलर टाइम पे हमने वो वाला कंट्रोल को किया, ठीक है। लेकिन कुछ चीज़ें होगी जो पूरे थ्रू आउट द ईयर चलेगी और ड्यूरिंग द मतलब पूरे टाइम पे चलेगी, तो इसका मतलब हम थ्रू आउट द ऑडिट क्या कर रहे होंगे, टेस्ट ऑफ कंट्रोल। तो दोनों तरीके से हम कर सकते हैं, बट डिपेंड करेगा हम किस चीज़ को चेक कर रहे हैं।
using the audit evidence obtained in previous audit. That in determining whether it is appropriate to use audit evidence about operating effectiveness of control obtained in previous audit, and if so, the length of time period that may elapse before retesting a control, the auditor shall consider the following. तो हमें क्या जो एविडेंस प्रीवियस ऑडिट में मिले थे, क्या वो एविडेंस हमें अब यूज़ करने चाहिए? तो वो डिपेंड करता है किस चीज़ों पे, कि कितना हमारा इंटरनल कंट्रोल इफेक्टिवली वर्क कर रहा था, द रिस्क अराइजिंग फ्रॉम कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ कंट्रोल एंड वेदर इट इज़ मैनुअल और ऑटोमेटेड, कंट्रोल मैनुअल था या ऑटोमेटेड था, कितनी इफेक्टिवनेस थी आईटी कंट्रोल में, द इफेक्टिवनेस ऑफ कंट्रोल एंड एप्लीकेशन बाय द एंटिटी इंक्लूडिंग नेचर, एक्सटेंट ऑफ डेविएशन, lack of change of particular control poses a risk. The risk of material misstatement and extent of reliance on the control. तो ये सारे पॉइंट हमें ध्यान में रखने होंगे जब हम क्या कर रहे होंगे, पिछला वाला ऑडिट का एविडेंस यूज़ कर रहे होंगे. If auditor plan to use the audit evidence from previous audit about operating effectiveness of specific control, the auditor shall establish continuing relevance of that evidence by obtaining audit evidence about whether the significant changes in those control have occurred subsequent to the previous audit. तो हमें बस ये देखना होगा कि हमें कितने चेंजेस उसमें हुए हैं उस टाइम पीरियड में, वो अप्लाई करके उसकी कितनी ऑपरेटिंग एफिशिएंसी है, वो सब ध्यान में रखते हुए हम उसको यूज़ कर सकते हैं. हो गया कंप्लीट, दो पेजेस और. When evaluating the operating effectiveness of relevant control, the auditor shall evaluate whether misstatement have been detected by substantive procedure indicate that control are not operating effectively. The absence of misstatement detected by substantive procedure, however, does not provide audit evidence that control related to assertion being tested are effective. A material misstatement detected by audit procedure is a strong indicator of existence of significant deficiency in internal control. जब आप किसी कंपनी में जाकर के अगर आप गलती निकालते हो ना, तो ये इस चीज़ का मतलब इसका ये होता है कि आपने जो ऑडिट किया है वो स्ट्रॉन्ग तरीके से किया है. मतलब गलती निकालना इफेक्टिव बताया जाता है ऑडिटर के लिए कि ऑडिटर ने अच्छे से वर्क किया है ना. अगर आपने ऑडिट किया बट वहाँ पर आपको कोई भी मिस स्टेटमेंट नहीं मिला, इसका मतलब ये नहीं है कि ऑडिट बहुत ही अच्छे तरीके से हुआ होगा, बल्कि हम ऐसा मानते हैं कि अ मटीरियल मिस स्टेटमेंट डिटेक्टेड बाय द ऑडिटर इज अ स्ट्रॉन्ग इंडिकेटर दैट एग्जिस्टेंस ऑफ सिग्निफिकेंस ऑफ डेफिशिएंसी इन इंटरनल कंट्रोल. वो बेटर होता है हमारे लिए. ठीक है. द स्पेसिफिक इंक्वायरी बाय द ऑडिटर व्हेन डेविएशन फ्रॉम कंट्रोल आर डिटेक्टेड. When deviation from control upon which the auditor intends to rely are detected, the auditor shall make specific inquiries to understand these matter. अगर auditor को क्या डिटेक्ट हुआ, डेविएशंस के बारे में पता लगा, तो ऑडिटर को क्या करना होगा, इंक्वायरी करनी होगी उस मैटर के ऊपर, एंड देयर पोटेंशियल कॉन्सिक्वेंसेस, और फिर उस डेविएशन की वजह से क्या क्या उसके रीजंस हो सकते हैं, क्या क्या उसके कंक्लूजन हो सकते हैं, वो पता लगाने पड़ेंगे. एंड शैल डिटरमाइन वेदर द टेस्ट ऑफ कंट्रोल दैट हैव बीन परफॉर्म प्रोवाइड एन एप्रोप्रिएट बेसिस फॉर रिलायंस ऑन द कंट्रोल. अगर डेविएशन है तो हमें एडिशनल टेस्ट ऑफ कंट्रोल भी करना होगा एंड पोटेंशियल रिस्क ऑफ स्टेटमेंट को हमें एड्रेस करना होगा. Irrespective of assessed risk of material misstatement, the auditor shall design and perform substantive procedure for each class of transaction, account balance and disclosure. This requirement reflects the fact that auditor assessment of risk is judgmental and so may not identify all risk of material misstatement. देखो, जब 2 पेजेस क्या कर रही है रूपम? अच्छा देखो, जो ऑडिटर असेसमेंट है ना, वो किस पर डिपेंड करता है, जजमेंट पर डिपेंड करता है, ऑडिटर के जजमेंट पर होता है.
और ऐसा ज़रूरी नहीं है कि वो सारे रिस्क ऑफ मटेरियल मिसस्टेटमेंट को आइडेंटिफाई कर सके। देयर आर इनहेरेंट लिमिटेशन ऑफ इंटरनल कंट्रोल इंक्लूडिंग मैनेजमेंट ओवरराइड। एक ये वाले डेफिनेशन भी आपको लर्न कर लेनी चाहिए कि सब्सटेंसिव प्रोसीजर आर ऑडिट प्रोसीजर डिजाइन टू डिटेक्ट मटेरियल मिसस्टेटमेंट एट असर्शन लेवल। तो सब्सटेंसिव प्रोसीजर कौन से प्रोसीजर होते हैं जो हमें पता लगाने में हेल्प करते हैं कि व्हाट आर द मटेरियल मिसस्टेटमेंट एट असर्शन लेवल। सब्सटेंसिव प्रोसीजर में क्या क्या आता है, टेस्ट ऑफ डिटेल और सब्सटेंसिव एनालिटिकल प्रोसीजर। तो अभी जो हम पढ़ रहे थे वो टेस्ट ऑफ कंट्रोल था, अभी हम क्या पढ़ेंगे, टेस्ट ऑफ डिटेल। टेस्ट ऑफ डिटेल आर फर्दर क्लासिफाइड इनटू टेस्ट ऑफ ट्रांजैक्शन, दैट इज वाउचिंग एंड टेस्ट ऑफ बैलेंसेस एंड वेरिफिकेशन। तो टेस्ट ऑफ ट्रांजैक्शन में हम क्या कर रहे हैं, वो जो हमने हमारे पास बिल्स हैं और उसके बैलेंस है, मतलब उन सबको हमारी एंट्रीज को, हमारे ट्रांजेक्शन्स को हम टेस्ट कर रहे हैं। फॉर एग्जाम्पल परचेज ट्रांजेक्शन में बी वेरीफाइड बाय एग्जामाइनिंग द परचेज इनवॉइस। आप परचेज ट्रांजेक्शन को कैसे वेरीफाई करोगे, उसके इनवॉइस से या फिर गुड रिसीव नोट से या फिर एंट्री पे जो रजिस्टर में नोट करते हैं हम उसको, उससे। such test of transaction help in establishing the authenticity of transaction recorded in the books of account। मतलब कि हमने एक्चुअल में परचेज करा है वो मटेरियल, हमें पता लग पाता है। टेस्ट ऑफ बैलेंस कंसिस्ट verification of asset as well as liabilities. Verification of an item of fixed asset, for example, would help in establishing existence of that asset as on the balance sheet date. अब टेस्ट ऑफ बैलेंसेज में क्या होता है, वेरिफिकेशन ऑफ एसेट एंड लाइबिलिटीज। वेरिफिकेशन ऑफ एसेट, फिक्स्ड एसेट में हम क्या देख रहे हैं कि जो एसेट हमारी बैलेंस शीट डेट में है ना, वो हमें एग्जिस्ट, हमारी बिल्डिंग में एग्जिस्ट भी करना चाहिए। दिस में बी ऑब्टेन बाय रिव्यूइंग entities plan for performing physical verification of fixed asset and obtaining evidence for performance of physical verification of fixed asset by management। अब फिक्स्ड एसेट को चेक कैसे कर सकते हो, फिक्स्ड एसेट को जाकर के फिजिकली वेरीफाई, आप जाकर के देख सकते हो कि वो एंटिटी के पास है या नहीं है, ठीक है। तो एसेट के चेकिंग को हम क्या बोलते हैं, टेस्ट ऑफ बैलेंस, या फिर लाइबिलिटी के चेकिंग को इधर रखा है, यहाँ पे टेबल पे। अच्छा बताओ, सब्सटेंसिव प्रोसीजर में क्या क्या आता है, टेस्ट ऑफ डिटेल नहीं, टेस्ट ऑफ डिटेल और सब्सटेंसिव एनालिटिकल प्रोसीजर। फिर नेक्स्ट बोलोगे ना, टेस्ट ऑफ डिटेल में आता है टेस्ट ऑफ ट्रांजैक्शन और टेस्ट ऑफ बैलेंस। टेस्ट ऑफ ट्रांजैक्शन का मतलब ट्रांजैक्शन चेक करना, जर्नल, वाउचर्स और ये सब वेरीफाई करना। और टेस्ट ऑफ बैलेंस में क्या वेरीफाई करना होता है, एसेट्स और लाइबिलिटीज वेरीफाई करना। Substantive analytical procedure refer to analytical procedure used as substantive procedure by auditor. The term analytical procedure means evaluations of financial information through analysis of plausible relationship among both financial and non-financial data। हमने analytical procedure पहले भी रीड करा था, याद करो, पढ़ा था ना
कि ऐसी चीज़ को आइडेंटिफाई करना जिसके बारे में ऑडिटर पहले अनअवेयर था, तो हम वहाँ पर भी इवैल्यूएट करते थे रेशियोज़ के थ्रू या 2 ईयर को कंपेयर करके या ऐसी भी इंफॉर्मेशन को निकाल कर, ऐसी रिलेशनशिप बनाकर जो कि फाइनेंशियल डेटा की भी हो सकती है या नॉन फाइनेंशियल डेटा की भी हो सकती है। एनालिटिकल प्रोसीजर ऑल्सो encompasses such investigation as is necessary to identify fluctuation or relationship that are inconsistent with other information or differ from expected values and a significant amount। हमने वहाँ पर एग्जाम्पल भी लिया था कि अगर जैसे सपोज हमारा सेल्स, हमने 2 साल को कंपेयर करा तो हमारे सेल्स तो बढ़ रहा था, लेकिन हमने देखा कि नेट प्रॉफिट हमारा डिक्रीज हो रहा था। तो हमने यहाँ पर क्या बताया, रिलेशनशिप क्रिएट करा सेल्स और नेट प्रॉफिट में, और फिर हमने ये देखा कि क्या फ्लक्चुएशंस हो रहे हैं और रेलेवेंट इन्फॉर्मेशन जो भी हमारे पास उसके अंदर जो एक्सपेक्टेड वैल्यू जो अमाउंट होनी चाहिए थी वो नहीं है। तो ये सब क्या है, एनालिटिकल प्रोसीजर। द यूज़ ऑफ वाइडली रिकॉग्नाइज्ड रेशियोज कैन ऑफन बी यूज्ड। इसमें हम और क्या यूज़ कर सकते हैं, हम रेशियोज़ का इस्तेमाल कर सकते हैं एनालिटिकल प्रोसीजर में करने के लिए। एनालिटिकल प्रोसीजर इन्वॉल्विंग for example the prediction of total rental income on building divided into apartments, taking rental rates and number of apartments and vacancy rates into consideration can provide persuasive evidence and will eliminate the need for further verification by means of test of detail। अब जैसे यहाँ पर हम एनालिसिस कर रहे हैं कि अगर हमने एक पूरी बिल्डिंग, हमारे पास कितनी टोटल रेंटल इनकम आ रही है और टोटल रेंटल इनकम को हम निकाल रहे हैं कि हमने कितने रूम्स रेंट पर दिए हैं, एक रूम का रेंट कितना है, कितने उसमें वैकेंट पड़े हैं, उन सबको एनालाइज करके हम ये निकाल रहे हैं कि वो जो टोटल रेंटल इनकम है वो करेक्ट है या नहीं है। Substantive analytical procedure are generally more applicable to large volumes of transaction that tend to be predictable over time. Nature and extent of substantive procedure. Depending on the circumstances, the auditor may determine that performing only substantive analytical procedure will be sufficient to reduce audit risk at an acceptably low level. For example, where the auditor assessment of risk is supported by audit evidence from test of control, only test of details are appropriate. A combination of analytical procedure and test of detail are more responsive to the assessed risk. तो एनालिटिकल प्रोसीजर भी हमें रिड्यूस करने में, रिस्क को रिड्यूस करने में हेल्प करता है, लेकिन एनालिटिकल प्रोसीजर को अगर हम टेस्ट ऑफ डिटेल के साथ यूज़ करें तो वो ज़्यादा रिस्पॉन्सिव और ज़्यादा हमें बेटर रिजल्ट देता है। बिकॉज द असेसमेंट ऑफ रिस्क ऑफ मटीरियल मिसस्टेटमेंट takes account of internal control and extent of substantive procedure may need to be increased when the results from test of control are unsatisfactory. In designing test of detail, the extent of testing is ordinarily thought in terms of sample size. However, other matters are also relevant. ठीक है ना, हमने देखा था ऑडिटर रिस्पॉन्सेज टू एसेस रिस्क, इसके अंदर हमने 2 देखे, एक टेस्ट ऑफ कंट्रोल, एक सब्सटेंसिव प्रोसीजर। सब्सटेंसिव प्रोसीजर में क्या क्या आता है, टेस्ट ऑफ डिटेल एंड सब्सटेंसिव एनालिटिकल प्रोसीजर। और टेस्ट ऑफ डिटेल में क्या आता है, टेस्ट ऑफ वेरिफिकेशन और टेस्ट ऑफ बैलेंसेस। अब ये दोनों टेस्ट और अंडरस्टैंडिंग 9 और 10 ये दोनों कंप्लीट करो। ये क्या हो गया, Zumba Product Private Limited is a small company. The control system in company is rudimentary. How you as an auditor of the company will proceed to evaluate internal control of the company. Sorry. यहाँ पर हम रेगुलेटरी फ्रेमवर्क भी लगा सकते हैं। अच्छा, स्मॉल कंपनी लिखा था वहाँ पे, in small company control system are basic and not formalized, therefore auditor shall proceed to evaluate internal control using narrative record. narrative record क्या होता था, जिसमें हम सारा डिस्क्रिप्शन देते थे सिस्टम में, और वो स्मॉल कंपनी के लिए बेनिफिशियल होता था क्योंकि हम लार्ज कंपनीज में हम ये कर ही नहीं सकते, हम इतना डिस्क्राइब ही नहीं कर सकते। क्रोनोलॉजिकल ये तो
क्रोनोलॉजिकल, ये तो हमने वैसे कहीं ऐसे स्टेप्स में तो नहीं पढ़ा कहीं पर भी। अच्छा, a chartered accountant during the course of audit of the company finds that cash is not deposited into bank frequently, although the concerned staff of the company was required to do so. बैंक में पैसा जमा करना था बट स्टाफ ऐसा कर नहीं रहा. फर्दर द ऑफिशियल रिस्पॉन्सिबल फॉर एश्योरिंग परफॉर्मेंस ऑफ द अबव फंक्शन हैज़ नॉट पेड एनी अटेंशन टू इट. डिस्कस व्हाट डज इट रिप्रेजेंट फ्रॉम ऑडिटर पर्सपेक्टिव. मतलब कंट्रोल यहाँ पर सही से नहीं लगाया जा रहा है. कैश इज नॉट डिपॉजिटेड इन बैंक फ्रीक्वेंटली ऑल्दो द कंसर्न स्टाफ ऑफ द कंपनी रिक्वायर्ड टू डू सो. फर्दर द ऑफिशियल रिस्पॉन्सिबल फॉर एश्योरिंग द परफॉर्मेंस ऑफ अबव फंक्शन has also not paid any attention to it. It means that control, इसमें क्या मतलब है, control is not working as planned. It would be not able to prevent misstatement and very purpose of control is defected. It represent control deficiency. अब बस आपको वो करेक्ट, वो 2-4 जो वर्ड है ना वो करेक्ट लिख करके आना है, बस आइडेंटिफाई करना है, वो आपके आंसर में होना चाहिए. ये भी कर लो केस स्टडी, ये आप खुद से करो एक बार. बुक तो है ही सबके पास, करो. क्या केस स्टडी? केस स्टडी एग्जाम में आती है, बल्कि अब केस स्टडी के ही वेटेज उन्होंने ज़्यादा बढ़ा दी है. ऐसी केस स्टडी एग्जाम में ज़्यादा आएगी, मतलब कि ऐसी वेटेज इन्होंने इंक्रीज कर दिया केस स्टडी वाली. कर रहे हो, जल्दी करो. मैं रीड करूँ या आप कर रहे हो? एक वैसे हिंदू, वैसे फर्स्ट का आंसर क्या है?
ड्रास्टिक फॉल। और पता है क्या होता है, जब भी कहीं पर भी ऐसे, जैसे इसमें क्या दिख रहा है हमें कि मतलब नहीं नहीं वो तो ठीक है, हाँ ये बड़ा है, बड़ा वाला आंसर ही होता है ज़्यादातर ऐसे वाले, क्योंकि टाइप ही नहीं करेंगे इतना बड़ा अगर वो आंसर नहीं होगा तो, है ना। मोस्टली ऐसा होता है एमसीक्यू में। हाँ मोस्टली सी होता है, और अगर उसमें ऐसे कुछ ऐसे जैसे यहाँ पर एक्सेप्शनली ये बी वाला पॉइंट 4 लाइन का है ना, तो वही होगा आंसर। The company products are outdated in the market. Which of the following is audit risk? Company should, हाँ, inventory may be overstated. The company should launch, ऐसा कुछ ठीक है। Overstated in such a scenario. हमने क्या बोला, बी चेक किया आपने? The large customer has failed to pay to the company. The identify risk. Overstated if recoverable, debt is not written off. Identify the audit risk involved when inventory holding period has increased from 30 days to 90 days. There is risk in overstatement of the inventory. There is risk related to existence of the inventory. There is risk in slow movement of stock. Would increase tax liability when GST rate are increased. ये क्या किया तुमने? क्या इनमें से किसी में किसी को कोई डाउट है? क्रिश केस स्टडी 2 के क्वेश्चंस कंप्लीट करो, लास्ट केस स्टडी 2 और कर लो। इसका भी सबसे बड़ा ही होगा। मैंने अभी देखा नहीं। बी है, पर हमेशा मत करना ऐसे, एक बार रीड कर ऐसा नहीं है हमेशा बिना बड़े एग्जाम में टिक लगा दिया। जिंदगी से जंग हार गई सबसे लंबा भी है। नेक्स्ट वाले में सी हो जाएगा, सेकंड वाले क्योंकि वो बड़ा इससे लंबा आंसर लंबा ही होगा। रीड भी कर लो, सिर्फ बड़ा बड़ा मत देखो। अब तो वही पकड़ लिया हमने। सारे वैसे ही सही आ रहे हैं क्या? तो पास ही ना गए हो। अब पास हो गए। तो अब इसमें तो आपको पता कैसे लगेगा? अब इसमें सी मत करके आ जाना। पर वो सारे हाँ। सही कैसे गए? ऐसा होता है, सही में होता आप है। ये सुनाए थे। नहीं, पर ये मैंने हर जगह देखा है। अब हम भी ऐसे करेंगे। ये वाला ट्रिक ना मैथ्स में नहीं लगता है। मैथ्स में ऐसे ही पता चलता है। मैथ्स में हम चलेंगे मैथ्स में। लेकिन मैथ्स में तो कैलकुलेशंस फिर भी करनी पड़ती है ना। जीरो आंसर होता है। इक्वेशन वाले क्वेश्चन में देखो, क्योंकि क्वेश्चन पेपर तो वैसे भी टाइप, अगर आपको भी क्वेश्चन पेपर बनाने को बोला जाए तो वो वाला आप ऑप्शन टाइप ही करोगे जो इतना लंबा, जिसमें आंसर
इतना लंबा आ रहा है फिर भी उसे टाइप कर रहे हो, तो किसने बचता है ऐसे? या तो और फिर ऐसे उसमें अगर छोटे छोटे हो ना तो मेनली सी रहता है। इसमें थोड़ा वो रहता है, Compulsory है। कंपलसरी नहीं है इसमें। तो आंसर देखो इसमें ए, कुछ भी हो वो सकता है। exception होता है। बट अगर हाँ आपको कुछ भी समझ में नहीं आ रहा और नेगेटिव मार्किंग है तो कोई ना कोई तो लगा के आना चाहिए ना।